Hi everyone, so my name is Pratyaksh Rastogi and good evening to you all. Welcome to my video and I'm going to make this video about the most important chapters for your biology NEET 2023 so that it will be easier for you guys to give a preference to every chapter and prepare accordingly. So first of all, this is our team you can see on my screen. Second thing, I would like to introduce you to APJ Academy, what all we provide. So guys, you can see over my screen, these are the key features about APJ Academy, which makes our academy unique from the other institutes. So first of all guys, we are providing you the ebooks or the PDF materials regarding every chapter or every topic whatever is present and is important for your NEET and JEE exam. Then we are organizing the test series for you which will be based totally on the pattern of your NEET and JEE, the latest pattern I'm talking about. Then the query solving. So guys, the mentors, the faculties all are available for you every time. What you need to do is, if you are having any doubt or any problem, if you need any help in any topic, just reach out to us through Telegram. I hope that you all are joined to a Telegram channel. If not, then you can join right now. Then the lessons. So guys, in biology, if I talk about particularly, so there are 38 chapters in total, including 11th and 12th, right? So those 38 chapters we will try to cover, like with a 100 plus classes for you all, right? So you don't have to be worried like how your syllabus going to be completed and all. But yes, it's just a matter of time. And yes, it's a 1 year full course plan, guys. So in this 1 year, it is basically, in order to make you prepared for all the syllabus. Okay, then the assignments. So after every chapter, since it's a flipped classroom method type of thing in which we are providing you the assignments for your self evaluation, so yes, we are doing that and we will provide you the assignments accordingly. Then so guys, this is the whole plan for you is just for 490 rupees. You don't have to pay the above amount, which is 3990, which was the before price, but now we are giving you a huge discount because the batches are going on and it's just the beginning of 2023 NEET. So that is why we are giving you a major discount of about 90%, and you are able to avail the whole 1 year course plan for just 490 rupees. So if you want, you can go right now, you can visit our website and you can take help from the mentors as well. Then we have a YouTube channel, the same YouTube channel you are watching my video. So what you can do is you can subscribe to our channel, you can hit the bell icon so that you will never miss a notification from us. And apart from that, if you like our video, then please hit the like button too. So guys, my name is Pratyaksh Rastogi and I am a biology teacher at APJ Academy, and I teach both, that is zoology and botany. And I am a BPT, my profession is BPT, that is Bachelor's of Physiotherapy. And I've been associated with so many institutes before, and I have a total of around 4 years of experience in teaching. And I have prepared around 10,000 students so far, more than 10,000 students so far for their NEET exam. Okay. So now I would like to present one quote which I prepared for you guys, which is taking up challenges always push you towards success, right? So isn't it right that the more challenges you will take, the more dedicated, the more successful you will be. Okay, so not wasting much more time, let's discuss about the most important chapters. So guys, first of all, I am going to consider the 11th part and then I'll jump on to the 12th one. So from the 11th book, the first initial chapters are plant kingdom, animal kingdom, structural organization in animals, and morphology. So guys, in this, the major thing is about the examples. Okay, आपको examples याद रखने बहुत ज़रूरी हैं. Examples of, for example, अगर हम plant kingdom की बात कर रहे हैं, so we have algae, we have bryophytes, right? We have pteridophytes, then we have gymnosperms, right? And then last we have angiosperms. और आपको पता है कि इन सब के अपने अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. सो उनको याद रखना भी मुश्किल है. आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कितने एग्जाम्पल्स याद रखोगे. सो द बेस्ट व्हाट यू कैन डू इज आप इनके एक्रोनिम्स बनाओ. एक्रोनिम्स आप सबको पता होंगे. एक्रोनिम्स का मतलब एक अपने ही एक लैंग्वेज में कोई छोटा सा एक आइडिया बना लो
कि मुझे इस आइडिया से मिलता जुलता ये पूरा लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स याद रखनी है। ओके, एक सॉन्ग का नाम बना लिया या कोई भी छोटा सा क्वोट बना लिया, कुछ भी बना लिया, दैट इज कॉल्ड एन एक्रोनिम। सो दैट विल रियली हेल्प यू फॉर दी टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, बिकॉज इन चैप्टर्स के अंदर आपके ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गी की बात करूँ, सो वी हैव क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, फिर उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स, वी हैव क्लेमाइडोमोनस, वी हैव स्पायरोगायरा, वी हैव अलोथ्रिक्स, वी हैव डिक्टियोटा, राइट। सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास। सो यू कैन नॉट रिमेंबर देम, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टू रिमेंबर देम बाय यूजिंग एक्रोनिम्स। ओके, सेम अप्लाइज टू योर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के भी अंदर देखो आप इनवर्टिब्रेट्स भी पढ़ते हो, राइट। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर फिर आप पॉरीफेरेंस पढ़ोगे, पॉरीफेरेंस के बाद यू विल गो थ्रू सीलेंट्रेट्स, देन यू नो देन डिफरेंट प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केहेलमिंथेस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, राइट। और फिर उसके बाद आप वर्टिब्रेट्स पढ़ोगे। वर्टिब्रेट्स में यू विल रीड पिसीज, राइट। सो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मैंने क्या बोला, आप पॉरीफेरा, राइट, देन नाइडेरिया, right, then coelenterata, right, उसके बाद you will read platyhelminthes. These are what? These are basically your subdivisions. Okay, then Aschelminthes, then you will have your mollusks, और उसके बाद आपके important annelids भी आते हैं, right, एनालिड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए। सो देखो आपके एनिमल किंगडम में ही कितने सारे सब डिविजन्स हैं, फिर इनके अपने अपने एटलीस्ट 5 to 6 एग्जाम्पल्स सबके हैं। ओके, so it's very hard for a student to remember. Even when I was a student and I was preparing for NEET, so it was also hard for me to just remember all these examples. So what I did is मैंने अपनी लैंग्वेज के अंदर इनके एक्रोनिम्स बनाए एंड देन मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई इनके एग्जाम्पल्स की, सो दैट वो लिस्ट एक जगह मेरे पास रखी रहे एंड आई कैन हैव अ लुक एट दोज एग्जाम्पल्स एवरी टाइम आई गो थ्रू द फाइल। ओके, सिमिलरली विद वर्टिब्रेट्स। सो वर्टिब्रेट्स के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, इन वर्टिब्रेट्स यू आर गोइंग टू रीड अबाउट फिशेस, दैट इज फिशेस, फिशेस को ही हम फिशेस भी बोलते हैं। उसके बाद यू विल गो थ्रू योर एम्फीबियंस, राइट, देन रेप्टाइल्स, देन आते हैं आपके एव्स, जिसको एविस भी बोलते हैं, एंड लास्ट इज मैमल्स, राइट। सो इतना आपको याद रखना है, एंड दिस इज जस्ट अबाउट योर एनिमल किंगडम चैप्टर। सो उसके अंदर के फिर एग्जाम्पल्स, एंड येस द मेजर थिंग इज अबाउट डायग्राम्स। डायग्राम्स भी बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली अबाउट प्लांट किंगडम चैप्टर। एनिमल किंगडम में भी इंपॉर्टेंट है, बट प्लांट किंगडम में डायग्राम्स को मैं रेफरेंस ज़्यादा दूंगा। सो डायग्राम याद रखना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का डायग्राम कौन सा है, और येस जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो भी आपके डायग्राम्स के बेसिस पर, आपके क्वेश्चंस के, आपके एग्जाम्पल्स के बेसिस पर, आपके फाइलम और डिवीजन के बेसिस पर पूछे जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे प्लांट किंगडम का लिया है, यू हैव टू बेसिकली आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। ओके, सो क्लेमाइडोमोनस में माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी होती है, येस इट इज ट्रू, सो दिस विल नॉट बी द आंसर। Then अच्छा, this is the how we have to attend our question. First of all, you will omit out all the incorrect answers, and then you will move on to the correct answer for this question. Volvox के अंदर colonial algae, that is also right, so it will not be answer for this question. Alothrix के अंदर filamentous algae होती है, again this will not be a incorrect answer, but fucus के अंदर हमको isogamous नहीं दिखता, fucus के अंदर हमको n isogamous algae दिखती है। ओके, सो दिस विल बी अवर राइट आंसर। सो दिस इज, आपने देखा कि ये ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं याद करोगे, अगर आप ऑर्गेनिजम्स को नहीं याद करोगे, देन हाउ विल यू बी एबल टू अटेंड दिस क्वेश्चन, राइट। सो दैट इज वाई माई ओपिनियन फॉर ऑल दोज 4 चैप्टर्स, दैट इज प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड द रेस्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, उसके अंदर आप टिश्यूज़ के बारे में पढ़ोगे। टिश्यूज़ मतलब जैसे आपका एपिथेलियल टिश्यू आ जाएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, आपका कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, राइट, देन यू विल हैव योर मस्कुलर टिश्यू, यू विल हैव न्यूरल टिश्यू, राइट। उसके बाद फिर वी हैव टू स्टडी यू नो लिटिल बिट एक्स्ट्रा अबाउट कॉकरोच, right, frog,
सो हमें इनके बारे में भी अलग से पढ़ना पड़ता है. सो दिस इज ऑल विच इज इंक्लूडेड इन योर. फिर एपिथेलियल टिश्यूज के भी आपको टाइप्स एंड एग्जांपल्स पढ़ने पड़ेंगे, कनेक्टिव के भी एग्जांपल्स, मस्कुलर. सो ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जांपल्स एंड द टाइप्स द क्वेश्चंस आर बीइंग पुट from these chapters. So it is easier for you to just make a list of all those examples in one on one page and then go through that every day. The most important reason for the immense success of arthropods. Now देखो, आपको arthropods ही नहीं पता होंगे तो आप ये क्वेश्चन कैसे करोगे? That is why it is very important to go through each and every example. Okay? So arthropods के पास हमारा multi-purpose appendages होता है which is giving their best advantage. Multi-purpose appendage मतलब they are using it for food engulfment, they are using it for walking, they are using it for climbing and more other activities. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपका मॉर्फोलॉजी से है. प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू. सो स्टेमन जो होता है उसके अंदर जो होता है हमारा एंथर होता है प्लस फिलामेंट होता है, राइट. मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल आप कैसे दिखते हो. सो अगर हम प्लांट की बात करें तो एक्सटर्नली हमें क्या दिख रहा है? हमें रूट्स दिख रही हैं, हमें शूट्स दिख रही हैं, हमें लीव्स दिख रही हैं, राइट. हमें फ्लावर्स दिख रहे हैं और हमें फ्रूट्स दिख रहे हैं, राइट. सो इन्हीं की बारे में हम पढ़ेंगे कि रूट्स के अंदर फिर टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल के रूट्स होते हैं, शूट्स, लीव्स, फ्लावर्स का अरेंजमेंट जिसे हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं वो कैसा दिखता है. एक इंपॉर्टेंट इसमें आता है फ्लोरल फॉर्मूला. सो उन सब के बेसिस पर ये चैप्टर आपका बना है और क्वेश्चंस आपके इस तरीके से आते हैं कि जो स्टेमन होता है यानी विच इज़ अ पार्ट, स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. ओके, उसके अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं. सो इसमें बोला है द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस. तो थैलेमस जो होता है इट इज बेसिकली प्लांट बेस पार्ट. ओके, प्लांट बेस पार्ट. सो इससे ये अटैच होता है. सो आंसर शुड बी सी. Similarly, the last question is from your tissues chapter, that is structural organization in animals. और इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन आपका बेसिकली टाइप ऑफ कार्टिलेज यानी कनेक्टिव टिश्यू से पूछा गया है. ओके, तो आप देख रहे हो द टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन दी एपीग्लॉटिस. एपीग्लॉटिस हमारा कहाँ होता है? फेरिंग्स के पास. पिन्ना हमारा ये चीज एंड टिप ऑफ नोज दैट इज दिस वन. सो दीज आर फ्लेक्सिबल एंड दे कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज रादर देन बोन and that is why which cartilage is present. So the answer should be elastic cartilage is present. Okay, then next chapters हमारे important है cell, biomolecules and cell cycle and cell division. So cell के अंदर आपको prokaryotic cell पढ़ने हैं, right. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट. इनके अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं, राइट. देन आपको यूकैरियोट पे मूव करना है. यूकैरियोट के अंदर आपको एडवांस पढ़ना है, दैट इज अबाउट एवरी ऑर्गेनेली, दैट इज इफ आई वुड नेम सो माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. देन आपको क्लोरोप्लास्ट, देन आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. देन आपको न्यूक्लियस, वैक्यूल, गोल्जी अपैरेटस, राइट. सो आप देख रहे हो कि कितने सारे टॉपिक हैं. फिर उसके बाद हमारा आता है सेल के अंदर ही एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. सो ये सब भी आपको पढ़ना है. एंड यू ऑल्सो हैव टू गो थ्रू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ऑल दीज ऑर्गेनेलीज. देन अगर हम बायोमोलिक्यूल्स में आए तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स वी हैव मोनोसैकेराइड्स, वी हैव ऑलिगोसैकेराइड्स, वी हैव पॉलीसैकेराइड्स, राइट. फिर हम आते हैं फैट्स के अंदर आप पढ़ोगे इनका बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स. उसके बाद फिर हम आते हैं प्रोटीन्स के अंदर भी हम इसमें बायोकेमिस्ट्री, इट्स अ बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं और इनके यूजेस पढ़ते हैं. सो इनके अंदर आप मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ोगे, दैट इज बायोकेमिकल स्ट्रक्चर, राइट. और उसके बाद फिर आप आते हो वाइटामिन्स वगैरह के ऊपर, फिर आप आते हो एंजाइम्स के ऊपर. एंजाइम्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस बायोमोलिक्यूल्स. सो एंजाइम्स के ऊपर फिर आप इफेक्ट ऑफ पीएच,
इफेक्ट ऑफ पीएच के बारे में बात करते हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करते हो, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, देन नेक्स्ट वी मूव ऑन टू योर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। अगर हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर की बात करें तो उसके अंदर अगेन हमें दो तरीके की सेल फेजेस पढ़ने पड़ते हैं। एक हमें पढ़ना पड़ता है एस फेज, G1 फेज, ओके, G2 फेज, देन उसी के आगे आता है माइटोसिस, मियोसिस। ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। मतलब एक सेल जो है वो कैसे डिवाइड करके दूसरे सेल को प्रोड्यूस करता है, वो सब हमें इस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना पड़ता है। सो सेल की डिवीजन कैसी होती है, जब उस एक सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और न्यूक्लियस के साथ साथ उसका साइटोप्लाज्म प्लस उसकी सेल वॉल डिवाइड करेगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन डिवाइड करेगी, राइट। सो माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल से हमारे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन सेल, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स with having other nucleus. But in meiosis, one cell is giving rise to 4 daughter cells. Okay, so this is the basic difference, and the other difference is that in mitosis the division is equational division, that is same number of chromosomes, n है तो दोनों में n। यहाँ पे रिडक्शन होती है डिवीजन में, यानी हाफ। अगर ये वाला डिप्लॉइड सेल था तो ये सारे हैप्लॉइड बनेंगे, यानी क्रोमोसोम रिडक्शन हो गया। ओके, देन हम आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी पे। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर आप पढ़ते हो, ओके, तो जाइलम के बारे में आप पढ़ोगे अच्छे से, फ्लोम के बारे में पढ़ोगे, प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ोगे, राइट, प्लांट वाटर रिलेशंस। सो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो। देन हम आते हैं, नेक्स्ट विल बी मिनरल एंड न्यूट्रिशन, राइट। मिनरल एंड न्यूट्रिशन के अंदर आप सारे मिनरल्स के बारे में या न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट होता है वो सब पढ़ोगे। देन थर्ड चैप्टर आपका आता है फोटोसिंथेसिस। ओके, सो फोटोसिंथेसिस के अंदर आप वही सारे पाथवे C3, C4, C2 पाथवेज पढ़ोगे। उसके बाद आप डिफरेंट इसमें बहुत सारी साइकिल्स होती हैं जो हमें याद करनी पड़ती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। जैसे हमारा ग्लाइकोलिसिस हो गया या TCA साइकिल हो गया, ऑल दीज टॉपिक्स। उसके बाद हमारा आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। दिस इज अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देखो गाइस, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर फंक्शंस क्या क्या चल रहे हैं। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट भी होता है जाइलम फ्लोएम की मदद से, प्लांट फोटोसिंथेसाइज भी करता है, दैट इज उसके बॉडी के फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनाटॉमी, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट आउट एंड इन। When I'm talking about physiology, we are talking about the functions of those structures. This is the basic difference between anatomy and physiology. Okay? So respiration आएगा, respiration के अंदर again there are certain kind of cycles what we are going to cover, and the next will be your the last will be your growth and development. So इसके अंदर हम पढ़ते हैं कुछ केमिकल्स के बारे में, हॉर्मोन्स के बारे में। ओके, केमिकल्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, लाइक हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सिंगल प्लांट। ओके, देन आता है हमारा 11th का लास्ट टॉपिक विच इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके अंदर हमारा डाइजेशन चैप्टर होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो 7 तरीके के हमारे अलग अलग प्रोसेसेस चलते हैं ह्यूमन बॉडी में, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, देन आगे आपका सर्कुलेशन, देन आगे आपका एक्सक्रीशन, नेक्स्ट विल बी योर मस्क्यूलर सिस्टम। ओके, उसके बाद आपका आएगा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, और लास्ट आपका आएगा हार्मोनल कंट्रोल। Okay, so these are the 7 different physiologies what all goes into the human body, and we will discuss about them one by one in each and every chapter. So there are 7 chapters and every chapter is based on one different physiology happens in the human body. Okay, for example अगर मैं digestion की बात करूँ, so digestion के अंदर हम
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड जो है वो डाइजेशन कराती हैं, ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में डाइजेशन होता कैसे है। सेम विद योर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे यानी लंग्स के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, हार्ट के बारे में बात करेंगे। सो आई एम राइटिंग रेस्पिरेशन के अंदर द मेन फोकस विल बी ऑन लंग्स, सर्कुलेशन के अंदर मेन फोकस विल बी योर ब्लड एंड हार्ट, एक्सक्रीशन के अंदर हमारा मेन फोकस होता है किडनीज, बिकॉज किडनीज आर द रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। देन उसके बाद आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम यानी लोकोमोशन, तो इसके अंदर हमारा बोन्स वगैरह का, कार्टिलेज का, इन सब का फंक्शंस होता है। उसके बाद हमारा आता है मस्कुलर हो गया, देन आपका न्यूरल, न्यूरल के अंदर हमारा मेन फोकस विल बी ब्रेन, और हार्मोनल कंट्रोल के अंदर हम सारे हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, और उसी हार्मोन्स की वजह से हमारे अंदर के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस काम करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। So this was about 11th guys. Now I am jumping on to the 12th part. Now in 12th में हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर हम, और दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो इसके अंदर हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर्स पहले वाले में हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, और सेकंड वाले में हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। ओके, सो बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम मेल प्लस फीमेल दोनों के रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि मेल के अंदर टेस्टिस, स्पर्म्स वगैरह, फीमेल्स के अंदर प्राइमरी हमारी ओवरीज, देन सेकेंडरी ऑर्गन्स, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी वेरी नॉलेजेबल टॉपिक फॉर यू, for your general knowledge as well. So this is that's why very important, and I have seen a lot of questions coming from these chapters, especially human reproduction, because this is very important even for a normal person. Now after that we will talk about principles of inheritance and variation and molecular basis of inheritance. So again this is about your genetics. Okay, इसके अंदर हम genetics के बारे में बात करेंगे. So we will talk about different laws, लाइक लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया आपका, ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो हम इसके बारे में क्या बात करते हैं, बेसिकली जेनेटिक्स में आपका क्या होता है, आपका डीएनए होता है, राइट। तो हम इसमें डीएनए के बारे में बात करेंगे, हम इसमें जीन्स के बारे में बात करेंगे, अलील्स के बारे में बात करेंगे, हाउ जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पेरेंट टू द अदर, one parent to the children, how genes are transferred, and how can we predict the sex, how can we know that if the disease is going to happen to the child or not, if the parents are affected or not, so all of that things. So law of independent assortment. Okay, so इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स के अंदर हम एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, वही जेनेटिक में ही आ गए, ओके, और सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके, और हम बात करते हैं इसमें चार्ट्स, कुछ चार्ट्स बनते हैं हमारे, जिस चार्ट्स की मदद से वी टॉक अबाउट द जेनेटिक composition of an individual. Okay, so these are all what we talk about in genetics. अगर हम मॉलिकुलर बेसिस की बात करें तो गाइज इसमें हम डीएनए के बारे में डीप में बात करते हैं, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। सो इन दिस बेसिकली वी विल टॉक अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डीएनए पैकिंग। डीएनए देखो बहुत बड़ा हमारा एक डीएनए का स्ट्रैंड 2 मीटर्स का होता है,
सो आप देख रहे हो आपकी बॉडी भी नहीं है 2 मीटर्स की, बट आपका डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर पैक्ड है। सो डीएनए पैकेजिंग हम देखेंगे इसमें। ओके, डीएनए पैकेजिंग के बाद हम देखेंगे कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। सो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ओके, जीन कोडिंग, ये सब हम इसमें देखते हैं। So these are all very important topics, guys. Again, you can expect a good amount of questions from these chapters, and that's why I've mentioned these topics, mentioned these chapters for your NEET 2023. Okay, so what you have to do is you have to focus more onto these chapters. I'm not saying that you have to skip the other chapters, you have to read them, but your main focus or your main goal is to क्लियर दीज चैप्टर्स बाय योर हार्ट। ओके, आपको कोई पॉइंट मिस नहीं करना है। देन आपका आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में हम बात करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, देन उसके बाद आता है फंजाई, देन हमारा प्रोटोजोआ, वायरस, है ना। ये हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनसे होने वाली कौन सी ह्यूमन डिजीजेस होती हैं, ह्यूमन डिजीजेस, उनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। प्लस हमारा वैक्सीनेशन, कि वैक्सीन का पर्पस क्या होता है और वैक्सीनेशन कब होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। वैक्सीनेशन हो गया आपका। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। इम्यूनिटी में हम पढ़ते हैं कि आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी कितना आपको सपोर्ट करती है, बाहर से आने वाली इम्यूनिटी जो आपको मेडिसिन से मिलती है, आपको वैक्सीन से मिलती है, वो कितना सपोर्ट करती है एंड ऑल ऑफ दैट। और इसमें एक और टॉपिक्स आते हैं HIV एड्स, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी एंड यू नो दैट HIV इज इम्यूनोसप्रेसेंट डिसऑर्डर, राइट। ये आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। सो HIV एड्स, और हम इसमें कैंसर के बारे में भी बात करते हैं। देन आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर गाइस वी अगेन टॉक अबाउट डीएनए। हम डीएनए के सेपरेशन के बारे में बात करते हैं, डीएनए सेपरेशन, कि हम डीएनए को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देन डीएनए एनालिसिस, कि डीएनए के अंदर कौन सा पेप्टाइड है, कौन सा अमीनो एसिड है, एवरीथिंग, मतलब डीएनए के पूरा चेन को हम, जो डीएनए की चेन बनती है उसे स्टडी कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो हम इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर सकते हैं कि हम उन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को कैसे डीएनए टेक्नोलॉजी से ठीक कर सकते हैं। सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स रेक्टिफिकेशन। ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स गाइस। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के अंदर हम सिर्फ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस में हम जो आज तक हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी को लेकर यूजेस की गई हैं उन यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने क्या हुआ है, प्लांट्स को वी हैव मेड डिजीज फ्री बनाया है। सेम इज विद एनिमल्स, हमने उनको डिजीज फ्री बनाया है या उनकी डिजीजेस बहुत कम करी हैं। सेकेंड थिंग, प्लांट्स को और एनिमल्स, प्लांट्स प्लस एनिमल्स, इनको हमने सुपीरियर क्वालिटी का बनाया है। सुपीरियर क्वालिटी मतलब ये बेसिकली हम दो अलग अलग एनिमल्स को ब्रीड करवाकर, जिनकी दोनों की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपस में, उनको ब्रीड करवाकर हम एक अच्छे खासा उनका प्रोजेनी बना सकते हैं। तो वो हमारे लिए फ़ायदा है, बिकॉज हमें एज बीइंग अ ह्यूमन हमें उनसे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। सो ये हमारा एप्लीकेशंस में आता है, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। और हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन आएगा इसमें एक, बिकॉज इंसुलिन इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द डायबिटिक पेशेंट। डायबिटीज़ में क्या होता है, आपका इंसुलिन अपटेक इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, या इंसुलिन बहुत कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज आपकी बॉडी में अपटेक नहीं हो पाता, वो ब्लड के अंदर ही रह जाता है और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपटेक ऑफ दैट ग्लूकोज बाय द बॉडी cells, and because of the production of the insulin, biotechnology application is very important. So you can expect the questions from these chapters. Last but not the least, the last unit of the 12th class, which is organisms, populations, ecosystem, biodiversity, conservation and environmental issues. इससे आप कम से कम नहीं तो 8 questions expect कर सकते हो from all 4 chapters. And yes, it is very important because again you are going to talk about environment only.
आप इन्वायरमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ोगे कि इन्वायरमेंट के अंदर यू नो व्हाट पॉल्यूशंस वी हैव, व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स वी हैव, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज you know how can we conserve our environment, what are national parks, what are biological sanctuaries, you know, botanical gardens and all, or what are the issues. So issues are global warming, ozone layer depletion, right? और हम इसके बारे में बात करेंगे कि what are the levels at which we have you know differentiated the organisms, कि हमारा कौन से organism you know we will also talk about that which organism is extinct, which organism is vulnerable, which organism is normal, which species is extinct, you know, all of those kind of things. So yes, this again is very important because we are going to all talk about an environment के अंदर हमारा abiotic factors भी आते हैं, that is air, water, land, soil, you know, noise, everything. और हमारे बायोटिक फैक्टर्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, हम खुद हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. ओके, so these are very important guys for you to understand and to just read these topics by heart. If you have any questions, if you do not understand any of these topics, well, you know, we will organize the classes for you. I'm a biology teacher, so we have already made a proper schedule for you guys to cover all these chapters in advance. But still, if you get any doubt, you can directly reach out to us on our Telegram channel, and you know, you all know my ID, you all are you know joined in the group, and I always message, so you can just reply me back through there. Now guys, so as I told you in the beginning that we are having a 1-year full course plan. So for that, these are the payment options. So we are accepting the online modes of payments such as Paytm, Google Pay, or you know, your debit card, credit card, whatever you want to use, and also the partial payment. So you know, since it's a very small amount, about 490 rupees only, but still if some students are not able to pay that much at a once, because you know some students, they just wanted to pay out of their pocket monies, so they can also do the part payments also. So for this you know, for if you need much more information about this, you can contact our mentors available, you can contact our you know customer service team, and yes, they will definitely help you out. So how can you get all this information? You have to visit our website. Okay, so visit our website, and if you have any doubt, then again please reach out to me. So thank you so much guys, and I hope that you find this video helpful for you to crack your NEET 2023 in a very best way. So thank you so much guys, and it was all from me. My name is Pratyaksh Rastogi. Bye bye, take care.